बिकॉज once we talk about the digital marketing तो still कोई audience miss है. मल्टी मिलियन रुपीज़ आप जनरेट कर चुके हो तो फिर आपको बड़े मीडियम पे जाना चाहिए. कुछ इतने अच्छे लेवल के आइडियाज़ थे कि यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग के स्टूडेंट लेवल के, या कुछ लोग ऐसे थे जो इवन बलूचिस्तान के एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते थे विच इज़ नॉट मच डेवलप्ड. And recently we have started our certification college where we are offering 37 certifications, 6-month certification, 1-month certification and 3-month certification as well. और 1 मिनट का ऐड एक बार चल जाएगा उसके बाद इट विल वैनिश. तो ई-कॉमर्स की दुनिया में इनेबलर्स माशाल्लाह बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं. Assalamu alaikum, this is me Huma Ghulam Nabi, your host for today. As we have a guest today, Mr. Kashif from Virtual University. He's an educationist, trainer as well as marketer. Assalamu alaikum Mr. Kashif. Mr. Kashif is here. Assalamu alaikum, how are you sir? कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम. Thank you madam for the nice introduction. Alhamdulillah मैं ठीक ठाक. Well sir, as you know, you have a 10-year experience in the industry. Be it you have started your career in marketing field. So after spending 10 years, where do you stand? Where do you feel yourself? कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं. एट द एंड आई मस्ट से कि लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप ऑडियंस को हमारी देना चाहें. जी श्योर. I am working as manager marketing at Virtual University of Pakistan. I did my MBA in marketing from Comsets University, and then I entered into the field of marketing, sales and marketing from conventional. Then I moved to digital marketing, and then I joined an educational institute. And from the last around 8 years, I am working at Virtual University of Pakistan. I have been privileged to serve in the education sector, as well as I joined as an officer, and today I am at a position of manager. It has been a great experience. It has been a learning experience as well as बड़ा आप टाइम के साथ सीख भी रहे होते हैं, इवॉल्व भी हो रहे होते हैं नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ. So if we talk about before 10 years when I joined the field of marketing, at that time when I moved to digital marketing, 10 साल पहले एक बहुत different trend था कि you do not have that perception कि digital marketing का क्या scope होगा. Exactly. And I was able to work with different organizations when I was in a private sector. I worked in some digital agencies, some software houses, जिनमें मैंने लोकल इंडस्ट्री के अलावा जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के साथ, इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, जिसकी वजह से मेरी एक्सपोजर एक काफ़ी बढ़ा. और ऑल्सो बेस्ड ऑन माई सीनियर्स, उन्होंने काफ़ी जो है मुझे उनके साथ काम करके सीखने का मौका मिला. आफ्टर दैट आई ऑल्सो मूव टू एजुकेशन सेक्टर. इसके साथ साथ मैं ट्रेनिंग्स भी देता रहा. मैं डिफरेंट कंपनीज़ को ड्यूरिंग माय एक्सपीरियंस मैंने कुछ को कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड की. सो उस ड्यूरेशन में भी मैंने बहुत सीखा कि लाइक व्हेन यू वर्क विद द लोकल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज व्हेन यू वर्क विद एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके SOPs, उनके काम करने के तरीका, उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं, SOPs जो हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने के, वो बड़े डिफरेंट होते थे. So it has been a great experience, and I am also thankful to the management of my university that इतनी efforts के बाद alhamdulillah I grew with the time. And I had been into the field of training, digital marketing में हम overall 360 degree marketing को देख रहे होते हैं, जिसमें satellite media, print media, electronic media, outdoor marketing and digital marketing and social media marketing, everything that comes under the domain of marketing. Alhamdulillah, I got an experience to work in all mediums of that domain. Mashallah, very well done. Well sir, beat your experience, I must ask this question from your side that online learning की जो हम बात करते हैं, जैसे कोविड आया था और थ्रू आउट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है हमारे कंट्री में. अगर फाइनेंशियली अगर हम बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ऊपर चला गया. तो उसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो थी, उन यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जो कि पहले से ही ऑनलाइन लर्निंग में पाकिस्तान में इन थी. अब आपको क्या लगता है कि आफ्टर कोविड स्टिल हमारा जो ऑनलाइन लर्निंग की जो स्पीड है वो बढ़ गई है, या हमारे लोगों में अवेयरनेस आ गई है, या स्टिल हम अभी वहीं पे खड़े हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, interesting thing is like Virtual University of Pakistan is providing
online education through the mode of ICT, information and communication technologies. And being the pioneer in the industry, a lot of other universities were facing issues, and at that time the university was growing even. Like it was like you cannot expect that during the COVID time other universities are facing issues, and we were able to execute our all sessions very successfully because our students were literate. They know how to use the technology. They were studying they were used to of the technology as well. And secondly, there was no interruption, like we did not any like delayed anything, and everything during the study period went very well. कोविड में व्हाट आई थिंक इसके लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन भी आई। एड टेक की अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी डिफरेंट स्टार्टअप्स एंड डिफरेंट कंपनीज़ ने एजुकेशन सेक्टर को बड़ा फोकस किया। एंड डिजिटली अगर बात की जाए ऑनलाइन एजुकेशन, तो ये इंक्रीज़ हुई टाइम के साथ। एज यू नो कि कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ भी डिजिटल मोड की तरफ मूव होना स्टार्ट हुई, बट देयर आर सर्टन मोड्स लाइक कुछ सिंक्रोनस मोड होता है, कुछ इन एसिंक्रोनस मोड होता है, कुछ ब्लेंडेड फॉर्म में एजुकेशन होती है कि सादा अल्फाज में कि एक सिंपल सा लेक्चर है, एक टीचर बैठे हैं और वो पढ़ा रहे हैं। फिर एक बेहतर तरीके का है कि लाइक जूम पे या लाइव कॉल के ऊपर, एक जैसे स्काइप के ऊपर या जूम पे लेक्चर दिया जा रहा होता है। एक होता है प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर है जो प्रॉपरली एडिटिंग के बाद जो टीचर है वो बोल भी रहे हैं और रेलेवेंट फिगर्स, ग्राफ्स या कंटेंट जो है वो राइट साइड पर आपको स्लाइड की फॉर्म में भी नज़र आ रहा होगा। वो बहुत फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन होता है जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटीज इस चीज़ को फॉलो कर रही है। फिर इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी होता है कि यू स्टडी ऑनलाइन एज वेल एज यू कैन ज्वाइन द लैब्स फॉर प्रैक्टिकल्स, या आपको कुछ टाइम आपको क्लासेस में जाना होता है और कुछ टाइम आप एक्चुअली कह लें कि ऑनलाइन आप पढ़ रहे होते हैं। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ब्लेंडेड फॉर्म में भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। लाइक वी हैव some programs in the biosciences, or you can say faculty of science and technology, where students go for a certain period during the labs in some cities, and we also have a mobile bio lab as well। कि जिन बड़े cities के अलावा छोटे cities में जहाँ लैब की एक्सेस का इशू होता है, तो वहाँ हमारी लैब मूव होती है कुछ दिनों के लिए, वहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स करते हैं, एंड देन इट मूव्स टू द नेक्स्ट सिटी। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोड है जिसमें हम एजुकेशन सेक्टर में जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर में लाइक वी हैव सीन लॉट ऑफ एजुकेशन सेक्टर में जो है वो कई इदारों ने काफ़ी वैल्यू ऐड की, जिसमें माशाल्लाह व्हाट आई वुड से enablers is doing great job in this sector, that they had started providing trainings through online mode as well as on site mode। कि यहाँ पे भी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इसमें भी बच्चे आके पढ़ रहे होते हैं, ऑनलाइन मोड में भी है, कुछ और भी इदारे काम कर रहे हैं। सो इट हैज़ प्रोवाइडेड अ गुड यू कैन से आउटरीच के स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी भी जगह पे बैठ के कोई भी चीज़ स्टडी कर सकते हैं। एंड बिफोर कोविड ये कॉन्सेप्ट नहीं था। आइदर वी टॉक अबाउट एजुकेशन सेक्टर, आइदर वी टॉक अबाउट ई कॉमर्स इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, कंपनीज जो, और या फिर वर्क लाइफ का स्टाइल के घर में बैठ के भी जी काम हो सकता है या नहीं, और सीखने के अलावा क्या काम भी हो सकता है या नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स का पहले परसेप्शन ये होता था कि दे शुड हैव अ बिग ऑफिस और एम्प्लॉयज़ की प्रेजेंस वहाँ पे होनी चाहिए। कुछ सेक्टर्स में तो अभी भी है, बट काफ़ी बिजनेसेस जो हैं दे हैव मूव्ड एंड इमर्ज्ड टुवर्ड्स लाइक वर्क फ्रॉम होम टाइप ऑफ बिजनेस, जिसमें उनके काफ़ी एक्सपेंसेस जो हैं लॉजिस्टिक्स के, आपकी जो बिल्डिंग है उसका रेंट हो गया, या इक्विपमेंट कॉस्ट हो गई, या एक स्पेशल कॉस्ट है जो आप मंथली बेसिस पे बेयर कर रहे होते थे। काफ़ी ऐसे इदारे पाकिस्तान में भी ऐसे मूव हुए हैं जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की तरफ मूव हुए हैं, या फिर वर्किंग ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के मोड पे भी गए हैं, चले गए हैं। बिल्कुल सही है, वेरी वेल डन सर। सर जैसे आपको पता है कि हमारा जो आजकल का टाइम है वो टाइम ऑफ डिजिटलाइजेशन है, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग की। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि डू वी हैव नीड ऑफ फिजिकल मार्केटिंग एज वेल, बिकॉज वंस वी टॉक अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग तो स्टिल कोई ऑडियंस मिस है एज़ कम्पेयर टू जहाँ हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो कोई ऐसा पार्ट है जिसको फिजिकली अवेयरनेस और इन चीज़ों की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर फ्रॉम द सेम फील्ड, तो आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। अगर फिजिकल मार्केटिंग भी नहीं, डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं, तो फिर
थर्ड हम कौन सा ऐसा मीडियम है जिसको यूज़ करते हुए, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे हम मार्केट में और अच्छे तरीके से जो है वो इन हो सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें फिजिकल मार्केटिंग के बारे में बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग और फिजिकल मार्केटिंग को अगर हम कंपैरिजन की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग ही बेस्ट है, बट स्टिल फिजिकल मार्केटिंग की ज़रूरत है। और फिर सेकंड थिंग इज़ कि हम इफ़ डिजिटल मार्केटिंग से ऊपर अगर हम जाना चाहते हैं तो क्या चीज़ बेस्ट है जो कि हम आजकल के टाइम पे जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा, और कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं बिकॉज दे आर नॉट क्लियर अबाउट के डिजिटल कन्वेंशनल यस विच इज़ यस बेटर, विच इज़ बेस्ट, हमें किस मोड पे जाना चाहिए। तो एज़ यू नो, व्हेन पीपल स्टार्टेड मार्केटिंग, तो स्टार्ट में बिल्कुल जो है वो रेडियो चैनल्स आए, और उसके थ्रू जो है वो इफ़ वी टॉक अबाउट अराउंड अ सेंचुरी एगो, तो ये रेडियो के थ्रू मार्केटिंग हो रही होती थी, प्रोग्राम्स भी चल रहे होते थे और बीच में एडवर्टाइजिंग आ रही होती थी। फिर कुछ इवॉल्व हुई टेक्नोलॉजी, तो फिर टेलीविज़न की तरफ मूव हो गया, और स्टार्ट में टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न चैनल्स थे जो आमतौर पे आप सिंपल एंटीना लगा के आप आउटरीच कर सकते थे, लाइक पीटीवी। जी जी फिर बिल्कुल। उसके साथ फिर डिश एंटीना एंड केबल टीवी नेटवर्क सैटेलाइट मीडिया में आ गए, एंड उसमें भी अगेन कह लें कि ब्रांड्स, कंपनीज या बिजनेसेस जो हैं एडवर्टाइज करके अपनी प्रोडक्ट को रेलेवेंट ऑडियंस तक उसकी आउटरीच लेके जा रहे थे, जिससे एक्चुअली द रिजल्ट वुड बी सेल्स। यस अच्छा, इसके साथ फिर टाइम के साथ डिजिटल का दौर आया। डिजिटल में कह लें कि डिजिटल एंड सोशल मीडिया, डिजिटल इज़ लाइक एनीथिंग यू रीच आउट डिजिटल, और डिजिटल मार्केटिंग में कह लें कि व्हेन यू टॉक अबाउट डिजिटल, तो डिजिटल में आप आम तौर पे वेबसाइट्स को देख रहे होते हैं कि जी वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो वो डिजिटल में आ रही होती है। और सोशल मीडिया में वो तमाम सोशल मीडिया के नेटवर्क्स जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो आपकी सोशल मीडिया में आ जाती है। इससे ठीक है। पहले लाइक वन थिंग विच आई मिस्ड was the thing that I missed was outdoor marketing के आउटडोर आप बिल बोर्ड्स, बैनर, यस स्ट्रीमर्स, यस यस कैंपेन्स यस यस देखते थे। तो ये एक्चुअली कैटेगरीज 3 में आ जाती है, एक है अबव द लाइन, एक है बिलो द लाइन, और एक है थ्रू द लाइन। ATL, BTL एंड TTL एक्टिविटीज़। तो ATL में ये होता था कि आप सिर्फ एक कम्युनिकेशन सिर्फ दे सकते थे, बट ठीक है। आप रिटर्न में आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता था। लाइक आपने टेलीविजन नेटवर्क के थ्रू कोई ऐड चला दिया, आपने होर्डिंग के थ्रू कोई एडवर्टाइज कर दी, आपने कोई न्यूज़पेपर के थ्रू कोई ब्रोशर ऐड दे में दिया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये आ गई आपकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये चीज़ें जो हैं ये आपकी वन साइड कम्युनिकेशन दे रही होती थी। एक थी कि आपकी कम्युनिकेशन तो होती थी, बट वो उसका मीडियम डिफरेंट होता था, जिसमें लाइक आप डिफरेंट जगहों पे स्टॉल्स लगा देते थे, या आप एक्टिवेशन और इस तरह की, जिसमें जो कस्टमर्स या रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस थी वो आपसे कुछ क्वेश्चंस कर लेती थी। ब्रोशर आपने दिया, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, दे उनसे दी कुछ साथ ही। इनपुट ले लिया, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली। जो बीच में गैप था कि जो कम्युनिकेशन ऑफ द कस्टमर एंड द ब्रांड ऑफ द बिजनेस, वो एक गैप था। तो सोशल मीडिया ने बड़ा इवॉल्व इसीलिए किया, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, और टाइम के साथ साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो उसमें क्या हुआ कि कस्टमर के पास ये पावर आ गई कि वो ना सिर्फ अपनी वॉइस को एक्सप्रेस कर सके, अपनी अपनी बात का इजहार कर सके, बल्कि उसको बड़े मीडियम तक लेके भी जा सके, और कमेंट की फॉर्म में अगर कोई पोस्ट है किसी ब्रांड ने लगाई है तो उस पर वो कमेंट करके अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है या अपनी राय शेयर कर सकता है। और इदारों को या ब्रांड्स को और कंपनीज को ये बेनिफिट हुआ कि जो रेलेवेंट ऑडियंस है या कस्टमर्स है, उनको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वो उनको डायरेक्ट है मतलब सुनने का मौका मिलना स्टार्ट हो गया, जिसमें अच्छे ब्रांड्स क्या करते हैं कि वो इनपुट की बेस पे अपने ब्रांड में इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे होते हैं, और सजेशंस को बड़ा जो है ना वो पॉजिटिवली अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। वी टॉक अबाउट अगर डिजिटल मार्केटिंग को ओवरऑल बात की जाए तो डिजिटल प्लस सोशल मीडिया है, लाइक आप या तो सर्च इंजन्स के थ्रू मार्केट कर रहे होते हैं, या फिर आप डिफरेंट पब्लिशर वेबसाइट्स के ऊपर जा रहे होते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट लाइक डिजिटल में वेबसाइट्स की अगर बात करें, वेबसाइट्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इफ़ आई वांट कि जी अ पर्सन हु हैज़ इंटरेस्ट इन शॉपिंग और उसको कार्स पसंद है, या उसको क्लोथिंग पसंद है, फॉर एग्जांपल सूट्स वगैरह पसंद हैं, एंड तो मैं बड़ा टारगेटेड उसको ना एज के ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से उसको टारगेट कर सकता हूँ, और यहाँ तक भी टारगेटिंग कर सकता हूँ कि वो किस एरिया में है, वो लास्ट 3 days, 5 days, 7 days या लास्ट
कपल ऑफ आवर्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि किस मीडियम के थ्रू आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। लेट्स से कि अगर लास्ट 1 वीक में एक पर्सन ने वो उस रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या बाइंग की है, ठीक है। या तो आप जनरली भी टारगेट कर लेते हैं कि जी लास्ट 1 वीक में एक बंदे ने $500 या $1000 की या 10,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ की कोई चीज़ बाय की है, और उसमें मज़ीद अगर आप टारगेट करेंगे उसने अगर कोई क्लोथिंग रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बाय की है या नहीं, तो इसका बेनिफिट ये हो गया कि आपको ना सिर्फ ये कि 1 वे कम्युनिकेशन, बल्कि आप 2 वे भी आ रही है कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो आपको इनपुट भी आ रही है। सेकेंडली ये कि अगर आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो आप बहुत डिटेल टारगेटिंग करते हैं, और अनलेस अगर आप फॉर एग्जांपल उसमें भी कुछ मीडियम्स हैं, CPM, CPC, तो अगर आप CPC में क्लिक्स वाली ऑप्शन को अगर ऑप्ट करते हैं तो आपको तब तक चार्ज नहीं होगा जब तक आपके ऐड पे कोई क्लिक नहीं करेगा, और क्लिक वही करेगा जो इंटरेस्टेड होगा, जो आपकी उस प्रोडक्ट में रेलेवेंट ऑफर में जो इंटरेस्टेड होगा। तो लाइक इट वुड बी इन सेंट्स आपको चार्ज हो रहा होगा, या इवन $1 मैक्सिमम कर लें, $2 कर लें, डिपेंडिंग अपॉन के टाइप ऑफ ऐड आप क्या कह रहे हैं। बट अगर आप कन्वेंशनल मीडिया की बात करें तो वो कम से कम आज की बात अगर की जाए, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि अगर आप 1 मिनट का किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में लाइक TV चैनल पे 1 मिनट का ऐड आप रन करते हैं तो इट वुड कॉस्ट यू अराउंड मिनिमम कोई अराउंड 1 लाख रुपए से लेके 5-6 लाख रुपए 1 मिनट का ऐड आप चला सकते हैं। और 1 मिनट का ऐड एक बार चल जाएगा उसके बाद इट विल वैनिश। उसमें से कितने लोगों ने वो ऐड देखा, कितने, और फिर उसमें से कितने रेलेवेंट थे। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट कोई इंटरटेनमेंट चैनल है तो उसकी ऑडियंस डिफरेंट है, न्यूज़ चैनल की डिफरेंट है, वो कितनी आउटरीच जा रही है ये तो शायद आपको एक एस्टिमेशन मिल जाए कितने लोग इस टाइम पे देखते हैं। बट उस ड्यूरेशन में से इफ़ यू टॉक तो लाइक द ड्यूरेशन ऑफ दैट प्रोग्राम, उस ड्यूरेशन में कितने लोग थे जो रेलेवेंट थे, ऑल्दो आपने बड़ी अच्छी टारगेटिंग कर ली। तो वो रेलेवेंसी, और फिर ये कि आपको उसके अगेंस्ट आप चाह क्या रहे हैं, सेल्स चाह रहे हैं, ब्रांड इमेजिंग चाह रहे हैं, तो वो अगर आप 1 मिनट की मैंने कॉस्ट बताई कि लेट्स टॉक अबाउट $500,000 5 लाख रुपए, तो आप कम से कम एक दिन के अंदर अगर आप 3 घंटों में 2-2 बार भी चलाएं तो अराउंड 6 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, तो तकरीबन 30 लाख रुपए तो एक दिन में सिर्फ 3 घंटे में 6 बार ऐड चलने लग गए। तो कम से कम 10 दिन तो आप चलाएंगे ना, या 20 दिन तो चलाएंगे ताकि अच्छे एक ऑडियंस को आप रीच आउट कर लें। तो मल्टीप्लाई बाय इफ यू वेट 10 तो तकरीबन ये 3 करोड़ की बात हो रही है। तो फिर जब इस लेवल पे आपने एडवर्टाइजिंग करनी है ना तो वो स्टार्टअप्स को सूट नहीं करता, या आपको वो कंपनीज जिनका बजट कम है बिल्कुल। और इवन इफ़ दे हैव 1 मिलियन फॉर एडवर्टाइजिंग, तो वो 1 मिलियन को वो एक साल में क्यों ना स्पेंड कर लें और पूरा एक साल उसके बेनिफिट लें, इंस्टेड ऑफ कि वो 6 डेज़ या 12 डेज़ की कैंपेन भी नहीं, बल्कि लाइक 5 लाख है तो 2 दिन चलेगा तो उसका 1 मिलियन जो है वो एक्सपेंस हो जाएगा। कंपैरेटिवली जब डिजिटल में आप करते हैं तो आप बड़ा डिटेल टारगेटिंग कर रहे होते हैं। फिर एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है डिजिटल की वो ये है कि आप उसको उसका डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, आप उसको रीटारगेट कर सकते हैं कि एक कस्टमर आया, उसने डिफरेंट एक्शंस किए, बट उसने लास्ट में आपकी चीज़ बाय नहीं की, आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं की, आपकी सर्विस ऑर्डर नहीं की, तो आप उसको आफ्टर 1 डे, आफ्टर 5 डेज़, आफ्टर कपल ऑफ वीक्स आप उसको दोबारा आपका उसको ऐड दिखा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कैंपेन के। आपकी कोई नई सेल की कैंपेन आई है, फिर आप अपने करंट कस्टमर्स को भी भेज सकते हैं। बाकी कन्वेंशनल मीडिया में आप सेम कस्टमर को चीज़ उस तरह से मार्केट नहीं कर सकते। लाइक आपके पास उसका डेटा ऑल्दो ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर की फॉर्म में तो होगा, बट उसमें आप कितने नंबर ऑफ कॉल्स करके लोगों को ऑफर करेंगे। लोग जो हैं वो इस चीज़ को लाइक नहीं करेंगे कि अगर आपको कोई कॉल आ रही है या आपको कह लें कि कॉल करके कोई सेल्स की बात कर रहा है। सो व्हाट वी टॉक अबाउट इज़ लाइक कन्वेंशनल वर्सेस डिजिटल में, अनलेस यू हैव रीच्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कह लें कि सेल्स की बात कर लें या रेवेन्यू जनरेशन की, जिसमें अराउंड यू कैन हैव 10 मल्टी-मिलियन रुपीज़ आप जनरेट कर चुके हो, तो फिर आपको बड़े मीडियम पे जाना चाहिए। या फिर अगर आप बहुत बड़े लेवल पे एक लॉन्च करना चाह रहे हैं और आपकी ऑडियंस मैसेज है एंड यू वांट कि जी एक बार ये चीज़ चले तो ये टॉक ऑफ द टाउन हो जाए, तो यू शुड हैव मल्टी-मिलियन रुपीज़ रेवेन्यू इन द बजट, नॉट द रेवेन्यू सॉरी बट द बजट, कि आपको मल्टी-मिलियन रुपीज़ का बजट हो और आपने कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव करना हो। उसमें फिर आप स्पॉन्सरशिप की ऑप्शन में भी जा सकते हैं या डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग में भी जा सकते हैं।
इसी में जब स्टार्टअप्स की बात की जाए तो लाइक देयर इज़ अ पोटेंशियल कि स्टार्टअप्स जो हैं वो कुछ थाउजेंड से भी अगर एडवर्टाइजिंग करते हैं विद अ वेरी लो बजट, तो पोटेंशियल इतना है कि डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं या क्या सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, किस प्राइस रेंज में ऑफ़र कर रहे हैं, आपने वर्किंग उस पे क्या की हुई है, आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, तो आप थाउजेंड से लेके बड़े आराम से मिलियंस की सेल्स कर सकते हैं। एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस कि मैंने खुद इस तरह की वर्कशॉप्स करवाई हुई हैं या सेशंस डिलीवर किए हुए हैं इवन एट सम यूनिवर्सिटीज़, जिसमें उनको केपीआईज डिफ़ाइन की गई कि लाइक कुछ दिनों में आपको 1 और 2 और 3 वर्कशॉप्स के बाद आपने ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, सेल्स इज़ नॉट द टारगेट। एंड एट द एंड ऑफ दोज वर्कशॉप्स तो इट वाज लाइक दे वर डूइंग सॉर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, बट वो जो है दे एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स, लाइक किसी को 5 ऑर्डर्स आ गए थे कि टीम को, किसी को 8 ऑर्डर्स, किसी को 10 प्लस ऑर्डर्स। तो इट इज़ लाइक विद द स्पेंड ऑफ नॉट मोर देन जस्ट 2000 रुपीज़ उन्होंने 3 दिन की कैंपेन चलाई होगी। एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल तो बिल्कुल सही। उसमें अब डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट 1000 रुपये की है या प्रोडक्ट 20,000 रुपये की 30,000 है। की है। और उसमें फिर आपने जब प्लानिंग करनी है तो आपने प्लानिंग फिर आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और आपकी कॉस्टिंग कैसे आपने की हुई है कि अगर आप होलसेल मार्केट से ले रहे हैं या आपके पास जो प्रोडक्शन है वो आपकी इन हाउस है, तो आपको काफ़ी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। इसमें मैं आई विल ऑल्सो शेयर एन एग्जांपल टू मेक इट इंटरेस्टिंग कि आई नो अ पर्सन हु स्टार्टेड बिजनेस ऑनलाइन, और उसके फादर की ना होलसेल शॉप थी एंड ही स्टार्टेड कि इंस्टेड ऑफ मैं शॉप पे बैठ के तो एक एक्स्ट्रा सेलमैन वाला काम करूँ या थोड़े बहुत और सेल करूँ, व्हाई नॉट आई शुड एक्सपैंड इट। और उसने ऑनलाइन स्टोर बना लिया उस टॉय शॉप का। एंड वी वर हैविंग अ डिस्कशन, हमारा लाइक कह लें कि यूनिवर्सिटी मेट ही कह लें, ही वाज जूनियर 2 ईयर्स जूनियर टू मी, एंड वी वर सिटिंग एट अ डिनर एंड ही वाज सेइंग कि मैंने ये सोच के ये प्लान किया था एंड वो माशाल्लाह टेंस ऑफ मिलियंस में माशाल्लाह ही हैड जनरेटेड द सेल्स। और उसकी वजह ये थी कि देयर वाज अ गैप और ऑनलाइन टॉयज शॉप्स अवेलेबल नहीं थी, और फिर सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि उसकी सोर्सिंग फ्री की थी। बट उसने एक नई मार्केट को मतलब टारगेट टारगेट किया किया था। कि शॉप पे तो लोग आ ही रहे हैं पूरे, लाइक कह लें दैट वाज अ होलसेल मार्केट, तो चाहे लाहौर के लोग आ रहे हों या पूरे पंजाब के लोग आ रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। बट टैपिंग दैट पोटेंशियल उसने ऑनलाइन सेल्स में पूरे पाकिस्तान को कवर करना स्टार्ट कर दिया। सोर्सिंग भी थी उसके पास, तो वो प्राइसिंग कोई और ऑफ़र नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर कोई होलसेलर से भी बाय करता है तो वो अगेन उसको वो कॉस्ट नहीं पड़ती जो उसको एक तरह से कह लें कि अपना ही कंटेनर वाले सब अगर मंगवा बिल्कुल। रहे हैं तो वो उनको तो वो चार्ज नहीं करेंगे ना, इवन ही कैन गेट दैट प्रोडक्ट और मोर डिस्काउंट। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अप्रोच कि आप अपनी करंट आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें आप क्या चीज़ अवेल करते हैं। सेम इज़ द केस कि इसी तरह आप कुछ ऐसे लोग हैं कि आप स्टार्टअप्स अगर स्टार्टअप पे काम करना चाहते हैं तो आपको फंड्स का इशू है, तो आप पेज बना लें, आप थोड़ा सा उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर लें, आप इवन कोई सप्लायर से बात कर लें कि जब मुझे ऑर्डर आएगा तब मैं आपसे इस रेट पे चीज़ बाय कर लूँगा इफ़ यू डू नॉट हैव द स्टॉक, तो और फिर उसको आप कोरियर के थ्रू भिजवा दें। एंड यू कैन हैव इवन there are some companies. Last week I was talking about with a company for the logistics and they were telling me कि ये जितने startups हैं उनको हम special subsidized rates offer कर रहे हैं। So all those people who want to do business और वो ये देख रहे हैं कि market में तो ये rate चल रहा है तो वो शायद costing को issue होगा, तो I would say कि go and meet the people related to logistics companies, तो वो आपको बड़े अच्छे solutions हेल्प देंगे करेंगे। कि you should at least आपकी ना हैंड होल्डिंग थोड़ी हो जाएगी और थोड़ा सा जब बिजनेस चल पड़ेगा देन आप कॉर्पोरेट रेट आपको ऑफर होंगे या बिल्कुल बिल्कुल। जो बिजनेस में मार्केट रेट चल रहा है वो ऑफर हो रहा होगा। सो दीज आर लाइक आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया नहीं हो गया बहुत होगा अच्छी कि सजेशन है हाउ हमारे बिल्कुल जी स्टार्टअप्स के लिए, इवन जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं कि पेज बना लें और ज़ीरो से स्टार्ट कर लें स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज हमारा एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग, हम अपना स्टार्टअप नहीं ले सकते हैं। तो ये मैं कहती हूँ आजकल के टाइम पे तो सिर्फ ये एक्सक्यूजेज ही रह जाएंगे सिर्फ। बिल्कुल। और इफ़ यू टॉक तो मिनिमम आजकल सबसे जो आसान काम है वो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड करें और एक बिजनेस अकाउंट बना लें, उसमें आप अपनी परफेक्ट। कैटलॉग्स भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट एक नंबर आपने लेना है, व्हाट्सएप डाउनलोड करना है
और उसको मार्केट करना है। उसमें थोड़ी सी मुश्किलात ये ज़रूर आती हैं कि जो बिल्कुल ज़ीरो से अगर किसी ने स्टार्ट करना है कि बिल्कुल सही। आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, कस्टमर्स ढूंढने पड़ेंगे। हम्म। बट सोशल मीडिया के ये बेनिफिट है कि व्हेन यू एडवर्टाइज तो एक्चुअली ऑर्डर तो उसने फिर भी आपको व्हाट्सएप पे ही करना है, करना ही है, आपको किसी बिल्कुल। नंबर पे ना, तो वो आपका बिजनेस उस पे सपोर्टिव रोल पे चला जाएगा। तो इनिशियली आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये सोशल मीडिया के अकाउंट बनाएं और थोड़ा उसको वायरल करने की कोशिश करें, उसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, थोड़े से एड्स चलाएं बिल्कुल एंड यू सही। विल गेट द रिस्पॉन्स। उससे फिर क्या होगा कि फिर आप फिर वेबसाइट पे चले जाएं हम्म। एंड इवन यू कैन मेक फ्री वेबसाइट ऑन कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे विक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया, उस पर आप ब्लॉग टाइप की वेबसाइट बना लें, जेनेरिक जी जी जी। इन्फॉर्मेशन। और अगर इफ़ यू वांट टू रियली डू द प्रोफेशनल वे तो वो आप प्रॉपरली .com की डोमेन बाय करें, बड़ा मिनिमम कॉस्ट है, जस्ट इट वुड कॉस्ट अराउंड $10 $20 होस्टिंग बाय करें, तो नॉट मोर देन अराउंड $100 आपका जो है वो एक वेबसाइट बन सकती है अगर डेवलपमेंट में सपोर्ट आपको हो जाती है। तो अगर आप स्टार्टअप टाइप हैं तो आप किसी अपने कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट से हेल्प ले लेंगे, जी मैं बिल्कुल अपनी वेबसाइट को सही। सेटअप करना चाह रहा हूँ, जी जी जी। और उसको पूरा ई कॉमर्स स्टोर अगर नहीं बना सकते, अगर हम्म। आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके में लेके जाना चाहते हैं, इसमें तो ये ना कि आपने प्रोडक्ट सिर्फ डिस्प्ले कर दिए, नीचे प्राइसेस लिख दें, इसको मज़ीद अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप फिर शॉपिफाई स्टोर अपडेट कर लें, उसमें फिर स्टॉक भी आप लाइव मेंटेन कर सकते हैं कि उसमें परफेक्ट। कुछ स्टॉक जो है जैसे ही स्टॉक आउट हुआ है या आप एक अमाउंट कर देते हैं कि 5 से जैसे ही नीचे प्रोडक्ट हो तो स्टॉक आउट कर दें, ताकि आप ये ना हो कि ऑर्डर ज़्यादा आ जाएँ और बैक पे स्टॉक ना हो। तो उस पे आप जा सकते हैं। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है एंड आजकल जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बड़ा दौर है, तो लोग इन्फ्लुएंसर्स को भी ऑन बोर्ड कर लेते हैं और इन्फ्लुएंसर की रीच ऑलरेडी बहुत अच्छी फॉलोइंग में हो रही होती है, तो आपकी सेल्स बड़ी अच्छी और जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। बिल्कुल सही। देयर लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज, बट ये है कि वन अनलेस यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस तो उस देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज और डिजिटल हेल्प्स अ लॉट, बड़े मिनिमम कॉस्ट में आप इसको जो है वो वो कर सकते कर हैं। सकते हैं। मतलब हर डिजिटल मार्केटिंग कन्वेंशनल सबकी इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह पे है जब आप स्टार्ट करने जाते हैं। तो वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं स्पेशली हमारे स्टार्टअप्स के लिए। सर रिसेंटली आपने जो है एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, नेशनल स्टार्टअप जो कंपटीशन था, उसमें यू पार्टिसिपेटेड देयर एज अ जज। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आप जो हमारा, अगर मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ तो जो वो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना स्टार्टअप लेके चलना है, जो आइडियाज़ थे जो बच्चों ने डिस्कस किए, क्या लगता है आपको कि उनको सीड इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है या दे आर डन विद दिस, कि माशाल्लाह वो इतने काबिल हैं? जैसे अभी आपने जो कंपटीशन थे उसमें आपने एज अ जज लोगों को जज किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हमारे स्टूडेंट्स को अभी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है या फिर दे आर रेडी टू वर्क इन द मार्केट। अच्छा जी, मैं इसमें एक इट्स एक्चुअली एन इनिशिएटिव बाय एस्पायर पाकिस्तान और नेशनल आइडिया बैंक के नाम से ये कंपटीशन हुआ। इट्स एक्चुअली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेपरेटली एक इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है। ओके ओके। इनका एक मकसद ये है कि दे वांट टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान एंड स्टार्टअप कल्चर इन पाकिस्तान। इसमें इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि एवरीबडी इज़ डूइंग, ऑल द जजेस आर डूइंग इट एज लाइक फॉर नॉन प्रॉफिट and volunteering their work and adding the value to it. Interestingly, I was not even expecting कि ये बहुत बड़े लेवल का कंपटीशन था and when I was selected as judge among the panelists, और there were certain categories, कुछ 4 to 5 categories थी जिसमें they were actually having the competitions, और हर category में उन्होंने फिर एक panel बनाया था. So that panel was like judging the startups and I was like from district level, then provincial level, and then national level. And I was surprised that there were आप देखें तो दोनों तरह के आपको स्टार्टअप्स आ रहे होते हैं। एक बड़े बेसिक लेवल की स्टार्टअप आइडियाज़ आ रहे होते हैं और कुछ इतने अच्छे लेवल के आइडियाज़ थे कि यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग के स्टूडेंट लेवल के, या कुछ लोग ऐसे थे जो इवन बलूचिस्तान के एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते थे विच इज़ नॉट मच डेवलप्ड, और आई वॉज सरप्राइज दैट दे हैड मेड अ वेबसाइट। आप यहाँ के किसी बच्चे से एक्सपेक्ट करें ना कि एक बच्चे ने एक वेबसाइट बनाई और वो वर्किंग कर रहा है और उसने सबमिट किया, तो आपकी परसेप्शन होती है कि जी इट कैन बी, इट इज़ पॉसिबल। हो सकता है बिल्कुल। बलूचिस्तान के किसी एरिया में एक पर्सन वो बिजनेस का प्लान किया एंड बड़ी अच्छी उसने पिच की, डिटेल में किया, बट मे भी शायद हमारी परसेप्शन डिफरेंट होती, बट व्हेन ही शोड हिज वेबसाइट एंड ही टोल्ड अस कि उसने इतनी सेल्स कर ली एंड वी वर सरप्राइज्ड टू सी दैट। सो पोटेंशियल इज़ ओवर देयर। काफ़ी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स थे, बहुत अच्छे आइडियाज़ थे, कई ने
अपना जो है वो प्रोडक्ट के MVP टाइप बना लिया था या प्रोटोटाइप्स बना लिए थे, एंड दे मेड दे प्रोटोटाइप्स और दे वर शोइंग दैट थिंग्स आर अवेलेबल, एंड जस्ट सी कि ये हाउ कैन यू हेल्प। कुछ ने सिर्फ मेंटोरशिप मांगी, कुछ ने फंड्स मांगे, एंड आई थिंक द विनर्स वुड विन अराउंड 2.5 मिलियन रुपीज़। तो वो अभी फाइनलाइजेशन में ज़ाहिर है कि इट वुड बी अनाउंस्ड इन अ वीक्स टाइम जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। जी जी जी। बट इट वाज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट आई वाज जजिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल्स फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान, और बड़े डिफरेंट तरह के एजुकेशन सेक्टर को भी मैंने देखा एंड IT सेक्टर में भी मैंने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ थे। एंड व्हाट आई थिंक कि आप लोगों के भी माशाल्लाह इंस्टीट्यूट में जितने लोग कह रहे हैं दे शुड गो फॉर लॉन्चिंग देयर ओन स्टार्टअप्स, और ख़ास तौर पे जो लाइक दोज ट्रेनीज हु आर वर्किंग, हु आर स्टडिंग एंड गेटिंग सर्टिफिकेशंस फ्रॉम enablers, इफ़ दे डू नॉट हैव द बजट फॉर PL, कि PL को लॉन्च करने के लिए उनके पास मिलियंस की इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो बड़ा अच्छा आप लोग सोल्यूशन भी देते हैं कि VA वर्चुअल जी जी असिस्टेंट बिल्कुल की बिल्कुल। सर्विसेज ऑफर करके एक्सपीरियंस गेन करें एंड देन PL वाली साइड पे जाएँ या होलसेल वाली साइड पे जाएँ। कंपैरेटिवली बट आई वुड से इसके साथ साथ ना लोकल ई कॉमर्स में चले जाएँ। लाइक आई शेयर सम एग्जांपल्स कि आप बड़ा बेसिक टाइप का स्टोर बना सकते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, या इवन दराज के ऊपर, कि दराज में भी आप बड़े मिनिमम की इन्वेस्टमेंट से आप उस स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। और जब तक आप स्टोर लॉन्च नहीं करेंगे, कुछ एग्जीक्यूट करेंगे नहीं ना, तो आपको आइदर इट डजंट वर्क, चाहे वो सक्सेसफुल ना हो, तो इट इज़ नॉट दैट फेलियर, इट इज़ लाइक यू लर्न अ थिंग कि हाउ थिंग्स वर्क इन द बिजनेस, कि अगर इस तरह से ये मिस्टेक्स हुई हैं मुझसे, नेक्स्ट में मैं ये चीज़ें इम्प्रूव करूँ और मैं और बेहतर तरीके में से स्टार्टअप को लॉन्च बिल्कुल करूँ या सही। नए वेंचर में जाऊँ। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे हम बात कर रहे हैं इनेबलर्स की, जैसे आप बता रहे हैं कि हमारा जो इदारा है इनेबलर्स ग्रुप ऑफ हमारे स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, जी माशा एंड रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड आवर सर्टिफिकेशन कॉलेज वेयर वी आर ऑफरिंग 37 सर्टिफिकेशंस, माशाल्लाह 6 month सर्टिफिकेशन, 1 month सर्टिफिकेशन एंड 3 month सर्टिफिकेशन एज वेल। तो ई कॉमर्स की दुनिया में इनेबलर्स माशाल्लाह बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। नो डाउट। उसमें मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो ई कॉमर्स को लेके किस हद तक सीरियस है, और आपका जो अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट आप कुछ करना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए इनेबलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कोई उसमें करना चाहें। What I would say is कि Virtual University of Pakistan has won and executed a project titled DigiSkills.pk। उसमें हमने multiple certification programs offer किए which are actually funded by the government and they offered free of cost to the public at large, जिसमें ओके। we have offered more than 3.2 million certifications माशाल्लाह, जो पाकिस्तान में बच्चों ने माशाल्लाह। सर्टिफिकेशंस किए हैं, स्टूडेंट्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स। हम्म। कुछ कोर्सेज हम उस प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर रहे हैं। वी ओके आल्सो ओके। हैव अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर जिसमें हम डिफरेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं, एंड वी आर आल्सो वर्क planning on launching some courses related to e-commerce, and it is already in process. Take the advice from the industry leaders and enablers, mashallah, is one of them. And what I think is कि obviously e-commerce is actually एक बहुत बड़ी opportunity provide करता है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी या इंटरनेशनली अपने ऑनलाइन बिज़नेस को या बिज़नेस को ऑनलाइन किस तरह से लेके चल सकते हैं। एंड माशाल्लाह जो enablers is doing great work in the form of certifications, in the form of providing an opportunity to all those certified professionals कि वो यहाँ पे भी काम कर रहे होते हैं, वो इंडस्ट्री में भी काम कर रहे होते हैं। फिर आप इन्वेस्टर्स की लाइजन बड़ी अच्छी कर रहे होते हैं विद द लोकल सर्टिफाइड पीपल फ्रॉम enablers, और वो उन दोनों को कनेक्ट करना कि जहाँ पे VAs उनको चाहिए होते हैं किसी इन्वेस्टर को या किसी बिजनेसमैन को, या आप PL लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोलैबोरेशंस विद लोकल एंड इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो एंड बिजनेसेस, इस मामले में तो enablers is doing great work, and inshallah we are working on it. Hope so we'll take advice from some of the industry leaders. Thank you so much sir for your valuable words and best of luck for your future plans and all that. आपको कहीं पे हमारी enablers की तरफ से अगर कोई कहीं पे गाइडलाइन चाहिए हो तो we are ready for you. Thank you so very much for coming. Thank you so much to all the team members and the management of enablers for considering me and inviting me for the session. And it was a very interesting podcast. बड़ा अच्छा लगा. Thank you and sir. I appreciate कि enablers बहुत अच्छा काम कर रहे हैं and wish you good luck.
थैंक यू सो मच।